So students, now let's discuss about the hypertensive disease in pregnancy. So hypertension क्या होती है? जब BP is more than 140/90 mm of mercury, we classified it as a hypertension. Now first we'll discuss about the classification of hypertensive disease in pregnancy. So let's discuss classification of hypertensive diseases in pregnancy. Now अब hypertension को हमने various categories में classify किया है. So the first type of hypertension is what? That is gestational hypertension. Gestational hypertension. The second type is that is preeclampsia. Second is what? Preeclampsia. Third one is eclampsia. Third one is eclampsia. Fourth one is chronic hypertension. Chronic hypertension. Fourth one is chronic hypertension with superimposed preeclampsia. Fourth is chronic hypertension with superimposed preeclampsia. So this is a classification of hypertensive disease in pregnancy. Now we'll discuss about each of them one by one. So first we'll discuss about the gestational hypertension. Gestational hypertension. Now gestational hypertension का क्या मतलब है? Gestational means during the pregnancy. इसको hypertension कब हुई? During the pregnancy. So इसका कुछ एक क्राइटेरिया है. अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, then we term this pregnancy as what? Gestational hypertension. So what is that criteria? Let's discuss. So if the BP of this pregnant lady is more than 140/90 mmHg of mercury on two separate occasions, एंड वो टू जो बीपी की रीडिंग्स आप लोगे उनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? एटलीस्ट 24 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए वो टू रीडिंग्स में. ऑन टू ओकेजन्स 24 आवर्स अपार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड वन इज period of gestation should be more than 20 weeks. आफ्टर 20 वीक्स के बाद ही उसका बीपी मोर देन 140/90 होना चाहिए. पहले नहीं, बिफोर 20 वीक्स हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. ओके, आफ्टर 20 वीक्स वी विल कंसिडर इट एज अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. ओके, एंड देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ proteinuria or and organ damage. No proteinuria or and organ damage. So अगर ये तीनों क्राइटेरियाज
फुलफिल होते हैं तो we called it as gestational hypertension. Okay, so all the criteria are needed for this. All criterias are needed. Okay, so अब कैसे डिफाइन करोगे? When the BP of the female is more than 140 by 90 mm of Hg after 20 weeks of gestation on two separate occasions by 24 hours difference in those two readings without proteinuria and end organ damage, we term it as what? Gestational hypertension. Okay. Now the next disorder of hypertension is what? That is preeclampsia. Preeclampsia. अब preeclampsia हम कब बोलेंगे? So to define preeclampsia, first what thing should be present? First जो BP है इस फीमेल का वो कितना होना चाहिए? Same. More than 140 by 90 should be more than 140 by 90 mm of mercury. Okay, वो भी two separate readings होनी चाहिए 24 hours apart. So on two occasions, (24 hours apart). Second, the period of gestation should be more than 20 weeks. Now, what is the difference between preeclampsia and gestation is this point. अभी ये point क्या है? There should be presence of proteinuria and end organ damage. So, proteinuria or end organ damage is present in preeclampsia that was absent in gestational hypertension. Got it? तो ये points अगर हैं तो we called it as preeclampsia. So again, how you gonna define preeclampsia? When the BP is more than 140 by 90 mm Hg of mercury on two separate occasions 24 hours apart and the period of gestation is after 20 weeks with presence of proteinuria and end organ damage, we called it as what? Preeclampsia. Got it? So just highlight these definitions. Now the third one is eclampsia. The third one is what? That is eclampsia. अभी eclampsia में mainly क्या होता है? Along with high BP, there is presence of seizures. In eclampsia, along with all the things that we have studied in preeclampsia, along with them, there will be presence of seizures. Now the third term is what? That is eclampsia. Eclampsia. अब हम eclampsia को कैसे define करते हैं? Basically, eclampsia is a combination of preeclampsia with seizures. So, जो भी हमने चीजें पढ़ी थी प्री-इक्लैम्सिया में वो तो प्रेजेंट होंगी ही इक्लैम्सिया में, बट अब सीजर्स भी आएंगे इस फीमेल को. ठीक है? इट इज बेसिकली प्री-इक्लैम्सिया प्लस सीजर्स. ठीक है? अभी ये जो सीजर्स होंगे इस फीमेल में, ये कौन से सीजर्स होंगे? We called it as tonic-clonic seizures. Tonic-clonic seizures. या हम इनको एक और नाम भी देते हैं. We called it as grand mal seizures. These are called as grand mal seizures.
नाउ ये सीजर्स में क्या होता है, टॉनिक का मतलब क्या होता है गाइस, टॉनिक मीन्स स्टिफनिंग, टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग, एंड क्लॉनिक का क्या मतलब होता है, दैट इज जर्किंग। सो इस फीमेल में जो सीजर्स आएंगे तो यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट दैट स्टिफनिंग एंड जर्किंग मूवमेंट ऑफ द फीमेल। सो इक्लैम्सिया में मेनली टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स और ग्रैंड mal सीजर्स प्रेजेंट होते, ठीक है, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, दैट इज chronic hypertension. Chronic hypertension. Chronic hypertension in pregnancy. अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? सो बेसिकली अगर जो भी हम अभी इसमें क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, अगर उसमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है इस फीमेल में, तो वी कॉल्ड इट एज chronic hypertension. So let's discuss those point. So first point is, अगर उसका बीपी हाई रहता है, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज, अगर उसका बीपी हाई ही रहता था प्रेगनेंसी से पहले, और यू कैन से इफ शी इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, देन वी कॉल्ड इट एज अ chronic hypertension. सो chronic hypertension का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, overt hypertension. So write it here. It is also called as what? Overt hypertension. Now first point is, if the BP is high before the pregnancy, or you can say if she is a known case of hypertension prior to pregnancy, then we called it as a chronic hypertension. Second thing, if the BP is high within the initial period of gestation, means within the initial 20 weeks, अगर उसका बीपी हाई जा रहा था तो भी आप इसको chronic hypertension क्लासिफाई कर सकते। हमने क्या कहा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यूजुअली आफ्टर 20 वीक्स के बाद होती है, एंड क्रोनिक मीन्स बिफोर 20 वीक्स अगर उस फीमेल में हाइपरटेंशन है तो इट इज क्रोनिक. सो राइट, इफ बीपी इज हाई within initial 20 weeks, it is also classified as chronic hypertension. And third criteria for this is, if the BP remains high even after the 12 weeks of delivery, then it is also termed as chronic hypertension. Usually जो gestational hypertension है ना, आफ्टर 12 वीक्स के बाद वो सबसाइड कर जाएगी. जैसे ही फीमेल की डिलीवरी हुई उसके 12 वीक के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा. बट क्रोनिक हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं होगा. सो राइट इट, इफ द बीपी इज हाई आफ्टर 12 वीक्स of postpartum period, it is called as chronic hypertension. अगर अब इन तीनों definitions में any of one thing is present, तो we classified it as chronic hypertension. So write any of the following if present, it is what? Chronic hypertension. Okay. The next is hypertension with superimposed preeclampsia.
Next one is, the fifth one is chronic hypertension with superimposed preeclampsia. So how you gonna define this? Now let's discuss. First criteria to define chronic hypertension with superimposed preeclampsia is if there is any new onset of proteinuria before 20 weeks. Okay, first is what? New onset proteinuria before 20 weeks. Now got it? देखो chronic hypertension में क्या होता था? हाइपरटेंशन थी बिफोर 20 वीक्स, ठीक है, बट अभी इसमें अभी इसको इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, इनिशियल 20 वीक्स में अभी प्रोटीन यूरिया भी अगर फीमेल को हो रहा है विद हाई बीपी, देन उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री इक्लैम्शिया. सो दोनों के फीचर हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन के भी और प्री इक्लैम्शिया के भी. सेकेंड, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज if there is a new onset of end organ damage before 20 weeks or in initial 20 weeks. So new onset of end organ damage in initial 20 weeks of pregnancy, then we also called it as chronic hypertension with superimposed preeclampsia. Third definition to define this is what? If she develops uncontrolled hypertension in initial 20 weeks. So, if she develops uncontrolled hypertension in initial 20 weeks, then we also classified this as chronic hypertension with superimposed preeclampsia. Got it? So again, if there is a both features of chronic hypertension along with preeclampsia, so it is chronic hypertension with superimposed PE. क्या क्या होना चाहिए? न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीन यूरिया होना चाहिए इनिशियल 20 वीक्स में. दूसरा, अगर एंड ऑर्गन डैमेज है इनिशियल 20 वीक्स में विद हाई बीपी. तीसरा, अगर उसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है इन इनिशियल 20 वीक्स तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लियर? Now these are all the classification of hypertension. How you will take BP in pregnant female? So this is a big issue. तो हमने इसमें BP कैसे लेना है? How to take BP in pregnant women. So always just remember one thing कि जब भी आपने किसी प्रेग्नेंट फीमेल का बीपी लेना है तो ऑलवेज सिटिंग पोजीशन में लेना है, ठीक है? ऑलवेज यू हैव टू टेक बीपी इन व्हाट पोजीशन? सिटिंग पोजीशन. कभी भी लेटी हुई पोजीशन में, अगर शी इज लाइंग तो उस पोजीशन में बीपी नहीं लेना, ठीक है? कम आएगा. तो ऑलवेज सिटिंग पोजीशन इज अ बेस्ट पोजीशन टू टेक बीपी इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है? नाउ आप इस फीमेल में हमने प्रोटीन यूरिया बोल दिया, एंड ऑर्गन डैमेज बोल दिया, पर आप उसको असेस कैसे करोगे कि इस फीमेल में प्रोटीन यूरिया है कि नहीं है, एंड ऑर्गन डैमेज है कि नहीं है? सो फॉर द असेसमेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया, what you will do, you can do some test. जो फर्स्ट टेस्ट आप इसमें करोगे, that is what? That is you can go for dipstick method.
What you will go for? Dipstick method. Okay, dipstick method करोगे. अगर if the value is more than +2, so means इसमें proteinuria है. Dipstick method आप, this is basically a screening test. You can do this in OPD as well. This is a screening and you can do this in OPD. Okay. Secondly, what you can do for assessing this proteinuria, that is, you can go for 24-hour urinary protein. 24-hour urine protein examination. Okay. अगर urine protein are more than 0.3 grams, so that will be abnormal. Okay. And the third test that you can do for the assessment of proteinuria is what? You can check the protein to creatinine ratio. Urine protein to creatinine ratio you can check, and if this ratio is more than 0.3 grams तो means दिक्कत है. So got it? प्रोटीन्यूरिया की असेसमेंट के लिए हमने 3 टेस्ट किए. कौन कौन से? यू आर यूजिंग द डिपस्टिक मेथड, जिसमें अगर मोर देन 2 पॉजिटिव है तो दैट इज एबनॉर्मल. सेकेंड इज यू आर यूजिंग द 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन्स, एंड अगर इफ द वैल्यू इज मोर देन 0.3 ग्राम्स तो एबनॉर्मल है. Then third one is urine protein by creatinine ratio. Okay, so these 3 methods you can use for assessment of proteinuria. Now how you wanna assess the end organ damage? So for assessment of end organ damage, what you have to do? So first हम क्या करेंगे इसमें? अगर तो platelet count, if the platelet count is less than 1 lakh. Second point, if the serum creat is more than 1.2. Third, if the liver enzymes, अगर liver enzymes are raised, like they are raised twice of their normal value. liver enzymes कौन कौन से? mainly AST और ALT. if they are raised twice of normal value. Fourth, if pulmonary edema is present, pulmonary edema. Fifth, if there is any cerebral or visual symptoms, cerebral or visual symptoms presence. Visual symptoms. cerebral symptoms कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि headache. Headache is a cerebral symptom. Visual symptom जैसे कि blurring of the vision या फिर diplopia या फिर blindness. These are all what? Visual symptoms. So क्या क्या हो सकते हैं visual symptoms? First is diplopia. डिप्लोपिया में क्या होता है? बेसिकली पेशेंट को डबल इमेजेस दिखती हैं. ठीक है, वो बोलेगा मुझे ये ग्लास 2 दिख रहे हैं या ये 2 फिंगर्स 4 दिख रही हैं. ठीक है. सेकेंड इज ब्लाइंडनेस एंड थर्ड इज व्हाट? ब्लरिंग ऑफ इमेज. उसको साफ नहीं दिखाई देगा.
अगर ये तीनों चीजें हैं तो वी कॉल्ड इट एज दीज आर व्हाट विजुअल सिम्टम्स। नाउ अगर जो भी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अगर उनमें से एक भी प्रेजेंट है तो वी कॉल्ड इट एज एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, सो इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग present, then we called it as end organ damage. First, अगर platelet count is less than 1 lakh. Second, if the serum creatinine is more than 1.2. Third, if liver enzyme like AST or ALT is raised, like कितना रेज होना चाहिए, डबलिंग होनी चाहिए ये एंजाइम की वैल्यूम्स में. Third is if there is a pulmonary edema, and fourth one is cerebral or visual symptoms if present, then we classified this as end organ damage. Got it? So basically आपके क्लिनिक में कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो you have to screen her for 2 factors. क्या क्या है? बीपी आपने उसका पक्का चेक करना है और दूसरा आपने उसका यूरिन डिपस्टिक्स पक्का चेक करने हैं to rule out what? Preeclampsia. So write down screen. We have to screen all pregnant females for 2 things to rule out pre-eclampsia. क्या है वो? First one is BP and second one is dipstick, mainly urine dipstick. Okay, so ये 2 चीजें आपने पक्का देखनी है उस फीमेल में. Now in case of gestational hypertension and pre-eclampsia, जो ब्लड प्रेशर है ना आफ्टर द डिलीवरी और यू कैन से डिलीवरी के 12 वीक्स के बाद जो ब्लड प्रेशर है वो खुद ही नॉर्मल उसमें आ जाएगा. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में. सो राइट दिस नोट. इन केस ऑफ gestational hypertension and pre-eclampsia, after more than 12 weeks of postpartum, BP will come to its normal value. Okay, got it? So ये पॉइंट याद रखिए कि आफ्टर डिलीवरी बीपी खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो प्री इक्लैम्सिया को हम सीवियर कब बोलेंगे? लेट्स डिस्कस. सो प्री इक्लैम्सिया with severe features. अगर फर्स्ट तो अगर इस फीमेल का बीपी मोर देन 160/110 है, इफ द बीपी इज मोर देन 160/110 mmHg of mercury, along with end organ damage evidence, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्री इक्लैम्सिया विद सीवियर फीचर्स. ठीक है, देखो बीपी कितना ज्यादा है इस फीमेल का, मोर देन 160/110. ठीक है, और एंड ऑर्गन डैमेज भी है इसमें, तो इस कंडीशन में वी कॉल्ड इट एज सीवियर प्री इक्लैम्सिया. गॉट इट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक फीमेल आती है
35 वीक्स प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। उसका बीपी जब आपने देखा, बीपी वॉज 155, लगा लो 155/100 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन में प्रोटीन यूरिया भी मेंशन है, प्रोटीन यूरिया भी है, मे बी 3+ डिपस्टिक मेंशन होगा। आफ्टर दैट देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। एंड ऑर्गन डैमेज को उस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि शी इज हैविंग सम विजुअल सिम्टम्स लाइक ब्लरिंग ऑफ विजन और डिप्लोप्लिया और ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट इन दैट फीमेल। तो मतलब एंड ऑर्गन डैमेज है, एंड ऑर्गन डैमेज इज देयर, ओके। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है उसमें, देखो बीपी भी ज्यादा है, प्रोटीन यूरिया, एंड ऑर्गन डैमेज, ये सब है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, वी क्लासिफाइड इट एज प्री इक्लैम्सिया विद सीवियर फीचर्स, ठीक है, गॉट इट। देखो प्रोटीन यूरिया, एंड ऑर्गन डैमेज और बीपी भी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 160, तो हम इसको सीवियर प्री इक्लैम्सिया क्लासिफाई, गॉट इट। नाउ we'll discuss about the etiopathogenesis of preeclampsia. So basically how preeclampsia will occur, हम उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म समझेंगे। So etiopathogenesis of preeclampsia. Now basically नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में वैस्कुलर रीमॉडलिंग होती है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू सप्लाई ब्लड टू द फीटस, इसीलिए हमारी वेसल जो है वैस्कुलर रीमॉडलिंग करती हैं टू सप्लाई एडिक्वेट ब्लड टू द बेबी। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है हमारी वैस्कुलर रीमॉडलिंग। अब ये वैस्कुलर रीमॉडलिंग कैसे होगी, क्यों होगी, बेसिकली ये हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो वैस्कुलर रीमॉडलिंग है, इट मेनली अकर्स टू इंक्रीज अ यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि हमें यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो बढ़ाना है। अकर टू इंक्रीज यूट्रोप्लेसेंटल blood flow. Now, why we want to increase this utroplacental blood flow? Because to support the normal pregnancy, हमें ये चाहिए, that is, this is required for normal pregnancy outcome. This is required for normal pregnancy outcome, okay. Now vascular remodeling कैसे होगी, अब ये vascular remodeling कैसे होगी, we'll discuss now. So generally this vascular remodeling is basically done by extravillous cytotrophoblast. Extravillous cytotrophoblast. आपने प्लेसेंटल फॉर्मेशन पढ़ी है, उसमें मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो जब एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, बेसिकली ये क्या करेगा, हमारी वैस्कुलर रीमॉडलिंग को कराएगा। नाउ हाउ दिस वैस्कुलर रीमॉडलिंग इज कंट्रोल्ड, सो बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय द डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुआ के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाय
डेसिडुआ नेचुरल किलर सेल्स। ओके, अब ये जो वैस्कुलर रीमॉडलिंग है ना, ये 2 फेज में होता है। दिस हैपन्स इन 2 फेज, हैपन्स इन 2 phases। अब कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट फेज जो है वैस्कुलर रीमॉडलिंग का, दैट इज बेसिकली कंप्लीट बाय 12 वीक्स। 2 फेज में होगी, फर्स्ट फेज इज देयर एंड देन सेकेंड फेज इज देयर। अब ये जो फर्स्ट फेज है ये कब कंप्लीट हो जाएगा? बाय 12 वीक्स। इट इज कंप्लीटेड by 12 weeks, whereas the second phase is completed by 16 weeks. It is completed by 16 weeks of gestation. Okay, got it? अभी वैस्कुलर रीमॉडलिंग क्यों नेसेसरी है वो आपको पता है, क्योंकि हमें यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो बढ़ाना है फॉर द नॉर्मल आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों, कौन कराएगा वैस्कुलर रीमॉडलिंग? दैट इज इट इज डन बाय द एक्स्ट्राविलस कोरियोस कट, रिपीट, so that is it is done by what? That is extravilus cytotrophoblast, and ये कंट्रोल कौन करेगा वैस्कुलर रीमॉडलिंग को? दैट इज डेसिडुआ नेचुरल किलर सेल्स। और 2 फेज में होती है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड इन by 12 weeks and second phase is completed by 16 weeks। ये आपने याद रखना है। नाउ ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की हमने बात। अब अगर ये वैस्कुलर रीमॉडलिंग एब्सेंट है तो क्या होगा? जो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो है दैट विल डिक्रीज एंड दिस विल लीड्स टू प्लेसेंटल इस्कीमिया। This will also leads to IUGR, that is intrauterine growth retardation. This will also leads to oligomenorrhea. This will also leads to abnormal placentation. Got it? Now let's discuss if vascular remodeling is absent, then what will gonna happen? There will be decrease uteroplacental ब्लड फ्लो। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? 3 चीजें होंगी। 3 things will happen. First one way is there will be development of uteroplacental insufficiency. यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है? देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटल इस्कीमिया। थर्ड, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन से मेरा मतलब है देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटल एक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा। ओके, सो अगर इस फीमेल में यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी डेवलप हुई तो दिस में लीड्स टू IUGR, that is intrauterine growth retardation and oligohydramnios. Okay, so that's why जो placental remodeling है that is this history. Now we'll discuss this in detail. So जब uteroplacental blood flow कम हुआ, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ, तो हमने कहा दिस विल लीड्स टू प्लेसेंटल इस्कीमिया। दिस विल लीड्स टू व्हाट? प्लेसेंटल इस्कीमिया। ओके, प्लेसेंटल इस्कीमिया हुआ
आफ्टर दैट ये प्लेसेंटल इस्कीमिया से क्या होगा, 3 थिंग्स विल हैपन हियर. 3 थिंग्स विल हैपन. क्या क्या होगा? फर्स्ट, देयर विल बी रिलीज ऑफ एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स. फर्स्ट क्या होगा? रिलीज ऑफ एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स. ओके. सेकेंड क्या होगा? सेकेंड, you will see there is a release of angiogenic factors. Second, there will be decrease release of angiogenic factors. ओके. थर्ड थिंग क्या होगी? यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. देयर विल बी इंक्रीज इन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. ओके. अभी क्यों ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इंक्रीज होंगे, विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट हियर. फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे हमने बोला जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर है उनका इंक्रीज होगा. ठीक है. जब ये एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? इन रिस्पॉन्स टू दीज कंपोनेंट्स देयर विल बी 2 थिंग्स. क्या होगा वो? तो अब हमने बोला फर्स्ट देयर विल बी इंक्रीज रिलीज ऑफ एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स. ये एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स क्यों रिलीज हुए? बिकॉज ऑफ द 2 थिंग्स. फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड O2 सप्लाई तब ये फैक्टर्स रिलीज होंगे. सेकेंड, व्हेन देयर इज अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. ठीक है. सो राइट इट हियर. दीज फैक्टर्स रिलीज्ड in response to compromised O2 and nutrient supply to fetus. ठीक है. जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे क्योंकि यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कम हो गई है. ठीक है. तो बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे जिसकी वजह से ये फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होंगे. ठीक है. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलीज होंगे यहाँ पे? तो बेसिकली आपने 2 फैक्टर्स याद रखने हैं. फर्स्ट इज व्हाट? देयर विल बी इंक्रीज इन सॉल्युबल एंडोग्लिन्स. देयर विल बी इंक्रीज ऑफ सॉल्युबल एंडोग्लिन्स. दिस इज व्हाट? This stands for soluble endoglin. Then there will be increase of FMS like tyrosine kinase. There is increase of soluble FMS like tyrosine kinase 1. Okay? Tyrosine kinase. So write it here. This is soluble FMS like tyrosine kinase 1. These are what? These are the anti-angiogenic factors. Okay. Then हमने बोला there is a release of angiogenic factors. Angiogenic factors क्या करेंगे? एंजियोजेनेसिस करवाएं. जैसे कि यू नो वेरी वेल कौन कौन से एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं. दैट इज प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. देन देयर इज व्हाट? दैट इज VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. दीज आर एंजियोजेनिक फैक्टर्स. थर्ड, हमने बोला देयर विल बी इंक्रीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. नाउ सी, whenever there is a stress, this will leads to release of the inflammatory mediators. तो हमने कहा इस पेशेंट में क्या डेवलप हुआ? देयर इज अ प्लेसेंटल इस्कीमिया. ये भी तो एक टाइप का स्ट्रेस है ना.
So this stress triggers the release of inflammatory markers. ठीक है, अब कौन कौन से inflammatory markers है? That is, there will be increase of thromboxane A2 as well as there is a increase of tumor necrotic factor. Okay, ये दो बेसिकली ये दो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं जिनका रिलीज होगा. ओके, अब ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं ये क्या करेंगे? दे विल मेनली लीड्स टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन. ठीक है, सो ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं ये क्या करेंगे? जो एंडोथेलियल की सेल लाइनिंग है ये उसको डिस्टर्ब कर देंगे. ठीक है, उसका डिसफंक्शन कॉज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी वेसोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा पर बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड फ्लो, क्योंकि स्पेस अब कम हो गई. देखो ये ब्लड वेसल है, इसका डायमीटर इतना है अभी. अब जब वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई तो ये इतनी रह गई है. प्रेशर विल इंक्रीज बट ब्लड फ्लो क्या हुआ? वो डिक्रीज हो गया. कहाँ? यहाँ से 5 ml जा रहा था, अभी कहाँ यहाँ से 2 ml जा रहा है. ठीक है, गॉट इट. सो बेसिकली जब आपने ये एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज हुआ तो क्या होगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम, तो प्री-इक्लैम्सिया होगा. नाउ ये जो तीनों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, दिस एंटी-एंजियोजेनिक फैक्टर्स, एंजियोजेनिक फैक्टर्स एंड दीज इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ये बेसिकली क्या करेंगे? ये तीनों विल लीड्स टू एंडोथेलियल इंजरी. This basically leads to endothelial injury. Okay, so basically it will leads to endothelial injury. ठीक है, अब जब endothelial injury होगी तो क्या होगा? See, this is the endothelium. This is the endothelium. अब ये endothelium is lined by these endothelial cells. These are the endothelial cells. अब हमने कहा ये सारे फैक्टर्स मिला के क्या करेंगे? ये सारे फैक्टर्स मिला के एंडोथेलियम की इंजरी कॉज करेंगे, इसको डैमेज कर देंगे एंडोथेलियल के सेल्स को. ठीक है, देयर इज अ डैमेज इन द एंडोथेलियल लाइनिंग. तो अब क्या होगा? जितना भी फ्लूइड था, यहाँ से जो भी ब्लड था, ये जो ब्लड यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, ये ब्लड था जो, अब वो this blood will come out. So first step यहाँ पे क्या होगा? First is all the fluid moves out to the extravascular space. So fluid moves out of moves out to extravascular स्पेस. ठीक है, अब जब फ्लूइड एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में आया तो दिस विल लीड्स टू व्हाट? दिस विल लीड्स टू एडिमा. क्योंकि अब सारा पानी जो है, जो भी फ्लूइड है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो गया? एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में. तो दैट विल कॉज व्हाट? एडिमा. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अब जब ये सारा फ्लूइड बाहर चला गया तो क्या होगा? ब्लड वेसल में कम फ्लूइड रह जाएगा. सो देयर विल बी लेस ब्लड इन दिस इंट्रावास्कुलर स्पेस. तो अभी देयर विल बी, ये जो सेल्स थे अभी ये ज़्यादा, पहले ये सेल्स जो थे 5 ml में प्रेजेंट थे, अभी ये जो सेल्स हैं 2 ml में प्रेजेंट हैं. तो क्या हो जाएगा? 5 ml में थोड़ा दूर दूर रहेंगे,
2 ml में become close means there will be hemo concentration. Second क्या होगा यहाँ पे? There will be hemo concentration. ओके, हीमो कंसेंट्रेशन हो जाएगी. थर्ड अब क्या होगा यहाँ पे? थर्ड यू विल सी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी दे स्टार्ट्स टू एग्रीगेट. ठीक है, एक तो इंजरी हुई है तो व्हाट विल हैपन? थर्ड these platelets will starts to aggregate. प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी. ठीक है, ये प्लेटलेट्स ऐसे आके यहाँ पे एग्रीगेट कर जाएंगे. बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज प्लेटलेट एग्रीगेशन. ओके, अब प्लेटलेट एग्रीगेशन जब होगी तो आफ्टर दैट क्या होगा? दिस कैन लीड्स टू थ्रोम्बोसिस. देयर आर मोर चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस. ठीक है, थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे. अब ये थ्रोम्बस अगर कहीं डिफरेंट ऑर्गन्स में गया तो दिस विल ऑक्लूड द वेसल ब्लड वेसल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल अगर ये किडनी में गया तो किडनी की ब्लड वेसल को एक्यूमुलेट कर देगा. क्या हो जाएगा? रीनल इस्कीमिया दैट फर्दर विल लीड्स टू व्हाट? रीनल फेलियर. सो बेसिकली दिस thrombosis will leads to what? End organ damage. This will leads to end organ damage. Got it? So इसका मैकेनिज्म पता लग गया आपको कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं दे विल लीड्स टू द एंडोथेलियल इंजरी. जब एंडोथेलियल इंजरी हुई तो जितना भी फ्लूइड था फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर स्पेस विल कम आउट टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस and will cause edema. Second, because of the movement of this fluid, this will leads to hemoconcentration. And third, there will be platelet aggregation that leads to thrombosis. And finally, there will be end organ damage. Okay? हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो इंट्रावैस्कुलर ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. In early case, what is happening? Intravascular blood flow is decreasing. ओके, ये डिक्रीज हो रहा है. अभी जब ये ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो आपको पता है हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, तो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा. बेसिकली ये कंपनसेशन कौन करेगा? हमारी किडनी करेगी. सो compensated by kidney. तो क्या होगा? You will see there is increase of BP. और प्री-इक्लैम्सिया में यही तो हो रहा था. प्री-इक्लैम्सिया में there is increase of BP with end organ damage. So यहाँ पे end organ damage भी है, increase of BP भी है. और BP का increase क्यों हो रहा है? Because of the compensated mechanism by kidney. Got it? So if they ask you what is the first sign for preeclampsia, so what is your answer? That is increased BP. First sign of preeclampsia is increase of blood pressure. And first organ to be affected in preeclampsia is what? That is kidney. First organ to be affected in pre-eclampsia is what? Is our kidney. किडनी अफेक्ट होगी. और किडनी में क्या होगा जब आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखोगे? सो
on histopathological examination of kidney, what you gonna find? You will see there is what? That is glomerular endotheliosis. You will see what? Glomerular endotheliosis. Okay, glomerular endotheliosis होगी. ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस क्या है? यहाँ पे जनरली जो एंडोथीलियल है सडनली इट विल इंक्रीज. नाउ व्हाट इज दिस ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस? मेनली यहाँ पे जो एंडोथीलियम है उसकी स्वेलिंग हो जाती है. हियर यू विल सी एंडोथीलियल स्वेलिंग. ठीक है. और दूसरा क्या होगा? यहाँ पे जो एंडोथीलियम में फेनेस्ट्रेशंस होती हैं उनका लॉस हो जाएगा. सेकेंडली देयर विल बी लॉस ऑफ एंडोथीलियल फेनेस्ट्रेशंस. ओके. सो जो फर्स्ट ऑर्गन प्री एक्लैम्पशिया में इन्वॉल्व होगा वो किडनी होगी. किडनी में क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस. ये फाइंडिंग आपको कहाँ मिलेगी? हिस्टोपैथोलॉजी पे. बेसिकली एंडोथेलियोसिस क्या होती है? व्हेन देयर इज अ एंडोथेलियल स्वेलिंग along with the loss of endothelial fenestration. Got it?